था, एक मैंने उनका वीडियो देखा था, बुर्ज खलीफा का, वो उन्होंने अपने बिल्डिंग को ही वो बुर्ज खलीफा माने, और उनको 54 टाइम्स उन्होंने चढ़ के उस बुर्ज खलीफा का जो कवर किया है, उस हाइट को उन्होंने कवर किया है। तो वो घर पे ही इस एक्सरसाइज को इन्होंने किया। तो मैं जानती हूँ कि इनका इतना ये है कि वो अपनी एक्टिवनेस को वो अभी भी बरकरार रखते हैं ये लॉकडाउन पीरियड। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये जो पीरियड है ये किसी के लिए भी कोई कम बात है। इसमें हम लोग अपने आप को एडजस्ट करें और अपना इम्यूनिटी पावर और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। थैंक यू। Thank you everybody. Thank you sir. So see you again sir. Thank you. Thanks Thank you. Thank you. Bye. Bye. Okay. Now I invite our next speaker, eminent speaker, Mr. Hemant Gupta. Sir. Hemant Gupta sir. Yeah, good afternoon ma'am. Good afternoon ma'am. Good afternoon everyone. Before inviting you, I would like to present your brief introduction before the audience. Mr. Hemant Gupta is one of the few people in the world who hold the rare honor to standing on the top of the world, I mean Mount Everest. He is an eminent mountaineer. After a BTech in Metallurgical Engineering and Material Science from IIT Bombay, he joined Tata Steel as management operator of Kalinga Nagar project in year 2011. During graduation, he took a basic course in mountaineering and fell in love with it. After joining Tata Steel, he went on expeditions, which ultimately led to him joining to Tata Steel Adventure Foundation in 2013 to follow his passion. Mr. Gupta has since climbed many mountains all over the world and now leads to TSAF. Today, time has become a big obstacle in front of us. We must overcome this challenge and scale these mountains to come out on top. इन पर्वतों जैसे कोविड-19 की बाधा को पार करने के लिए आइए आज के हमारे इस स्पीकर से हम लोग कुछ टिप्स लेते हैं। सर, most humbly I request you to come up on the floor, sir. Good afternoon, ma'am. Thank you so much, and thank you so much for giving me this opportunity. And so, good afternoon, everyone. And I was attending Sunanya's ma'am session, and उसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली, and खासकर बच्चों को जो बताया उन्होंने बहुत ही बेसिक चीजें जो स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं इसको कोविड के टाइम पर कैसे अपने घर में सब लोग अच्छे से रह सकते हैं। So I will be sharing my experience जो हम लोग माउंटेनियरिंग में माउंटेन्स में जाते हैं, काफी सारे वहाँ पर चैलेंजेस ऐसे होते हैं और अभी जो सिचुएशन है काफी दोनों में सिमिलैरिटीज है। तो उससे हम क्या लर्निंग्स होती है, क्या एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। जो कुछ इंस्टेंसेस मेरे साथ में हुए थे जो मेरी जर्नी में, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूर आप लोग अपने डेली लाइफ में भी उसको देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम माउंटेन्स में होते हैं, वाइल्ड में होते हैं, तो जैसे अभी जो सिचुएशन है हम सभी लोग घर में हैं, तो हमारे पास अभी घर का कंफर्ट है, फैमिली है, खाने पीने की सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं। बट सेम चीज जब हम माउंटेन्स में जाते हैं, कई बार वेदर खराब हो जाता है, हम एक टेंट के अंदर है बस। तो सिमिलर जैसा अभी लॉकडाउन सिचुएशन बोल रहे हैं हम, तो वहां पर भी लॉकडाउन होता है और आप सिर्फ एक टेंट के अंदर है और वहां पर आपके पास कोई कंफर्ट नहीं है। आप अकेले हैं या फिर आपकी टीम जो 2-3 लोग है टीम में, वो 2-3 लोग आपके साथ में है टीम में बस। Excuse me, sir. Sir, yeah. Excuse me. Once again, I would like to say my students and audience, so please, we will have an interaction session after sir's speech. So all of you, please be prepared for it. Sir, please continue. Sorry. Right. Yeah, thank you, ma'am. So what I will do, I will also show some pictures during my session. So I will show some pictures of my expedition, and at the end, people can ask questions. So I will not, so I will talk maybe for 20-25 minutes, and then people can ask lot of questions, and I will try to answer them.
Okay, so as yes ma'am, so as I was telling that जब हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, एक्सपीडिशंस में रहते हैं, वहां पर आप एक टेंट है, आपकी एक छोटी सी टीम है, और वहां पर कोई कंफर्ट नहीं होता है। जैसे वहां पर ना नेटवर्क है, ना आपके पास खाने की चॉइस है कि मैं आज ये खा लूंगा, आपके पास फ्रेंड्स की लग्जरी नहीं है, फैमिली की लग्जरी नहीं है, बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज है। वेदर भी खराब है, आपके पास एंटरटेनमेंट का आजकल तो जैसे सोशल मीडिया है यहाँ पर, या फिर नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी फैमिली को आपके बारे में नहीं पता है, आप कहाँ हो, कैसे आप हेल्दी हो या नहीं, तो बहुत सारे चैलेंजेस वहां पर आते हैं। तो जो ये सिचुएशन है अभी, जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, समथिंग सिमिलर है जो आप सिटी लाइफ में भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने ही घर में लॉक होके, बट हाँ बेसिक लग्जरी है। तो कैसे चीजों को हम वहां पर अपना जो गोल की तरफ हम अपने आप को मोटिवेट करके रखते हैं, खुद को पुश करना पड़ता है, तो उन सब चीजों के मैं बारे में थोड़ा सा कवर करूंगा। तो मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करने का कोशिश करता हूं। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मेरा जो टॉपिक sir. है वही है मैनेजिंग मेंटल स्ट्रेस एंड लेसन्स फ्रॉम माउंटेनियरिंग। सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर इन वन ऑफ माय एक्सपीडिशन, जो नेपाल में क्लिक की थी। तो सबसे पहले जैसे मैम ने इंट्रोडक्शन दिया, आई ज्वाइन टाटा स्टील इन 2011 एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑपरेशन। तो ये राइट वाली पिक्चर आप देख सकते हैं, मैं जब प्लांट में स्टील शॉप फ्लोर में था, एंड लेफ्ट साइड में व्हेन आई वाज कॉन्वोकेटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे इन 2011। सो इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई जॉइन टाटा स्टील, एंड आफ्टर आई जॉइन टाटा स्टील आई गॉट टू नो अबाउट टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। एंड आई थिंक सबको पता ही होगा बचेंद्री मैम के बारे में, मिस बचेंद्री पाल, स्पेशली पीपल फ्रॉम जमशेदपुर, क्योंकि वो TSF की हेड थी। एंड बचेंद्री मैम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, so she was the head of TSF. So when I joined Tata Steel, I got to know about TSF and मैं उनसे मिला, and after meeting her, knowing her, there was lot of inspiration for me also, कि काफी कुछ मेरे को सीखने को मिला। एंड मेरा भी जो कैरियर है, मैंने हार्ड कोर जो टेक्निकल, उससे मैंने कोशिश प्लान किया कि मैं स्विच करूंगा माउंटेनियरिंग में, आउटडोर्स में। तो क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं आई कैन डू बेटर एंड कंट्रीब्यूट बेटर इन दिस फील्ड। तो ये मैम से मिला था मैं 2012 में फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद मैंने 2013 में TSF ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो जैसे कि मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था 2017 में 27th में, तो कल मेरे एग्जैक्टली 3 years हुए थे एवरेस्ट क्लाइम करने को। सो yesterday was my third, like yesterday I completed my 3 years of climbing Everest, and आज 28th में को हम लोग नीचे ही उतर रहे थे समिट से, मतलब कैंप 2 से हम लोग नीचे ही आ रहे थे। सो एग्जैक्टली 3 years बिफोर। एंड तो एवरेस्ट जब क्लाइम किया था तो ऐसा नहीं था कि इट वाज अ ओवरनाइट थिंकिंग कि आज रात में शाम को सोए और सुबह सोचा कि चलो एवरेस्ट चल लेते हैं। इससे पहले काफी मैंने पीक्स क्लाइम की थी, एंड उसके बाद एक बार मेरे को बचेंद्री मैम ने पूछा था कि क्या तुम एवरेस्ट जाना चाहोगे, क्योंकि कभी भी मैं खुद से नहीं सोचता था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ फिजिकली मेंटली, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस आते हैं वहाँ पर एल्टीट्यूड के, बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फिटनेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो वो एक 2-3 साल का मेरा वो था। 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट का अटेम्प्ट किया था। तो उसका मैं ट्रेनिंग, तो मैं बहुत ही क्विकली आपको बस ट्रेनिंग से लेकर जाऊंगा कि जब आप इसका ट्रेनिंग करते हैं तो आपको माउंटेनियरिंग कोर्सेज करने पड़ते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि एवरेस्ट कोई भी पीक पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको रॉक के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या फिर आइस में आपको क्लाइंब करना पड़ता है, स्नो में आपको वॉक करना पड़ता है, कभी नैरो गलीज, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनमें आप कैसे क्रॉस करते हो, तो वो सब आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। एंड आपको, जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको हैवी लोड भी कैरी करना पड़ता है, खुद से मेरे को अपना सामान है वो उठाना होता है। वहां पर ऐसा लग्जरी भी नहीं होता है माउंटेन्स में कि आप सब कुछ सामान कुछ भी ले जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्या मैं ब्लूटूथ स्पीकर ले जा सकता हूँ क्या नहीं वहां पर, जैसी छोटी छोटी चीजें जो हमेशा हम यहाँ पर सोचते भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपको खुद के बैग पे कैरी करना पड़ता है, तो आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दो, जैसे कई बार होता है कि हमें ठंड में, वहां पर ठंड जैसे आपको पता है बहुत होती है, और मैं एक ग्लव्स छोड़ के चले जाऊँ, तो हो सकता है वो एक्सपीडिशन में मेरे को वापस आना पड़े, हो सकता है मेरे हाथ ठंडे होने लगे हैं। और इसमें जो होता है ना फ्रॉस्ट बाइट, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो इतना ज्यादा आपके हाथ वहां पर जमने लगे। तो ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है।
सो एवरेस्ट का आपको मैं एक, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, एवरेस्ट का हाइट 8,848 मीटर्स, एंड जस्ट टू इमेजिन इट, जिस हाइट पर हमारे प्लेन उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, वो रफली 9,000 10,000 मीटर्स उड़ते हैं। तो उसी हाइट पर एवरेस्ट का समिट है। एंड एवरेस्ट के जो समिट पर जो ऑक्सीजन लेवल है, इट्स एयर प्रेशर है, इट्स 1/3 ऑफ द सी लेवल। तो जो हमारे यहाँ पर आज एयर प्रेशर है, मतलब जमशेदपुर में, वो वहां पर सिर्फ 1/3 है। तो अगर इसको कल्पना करने के लिए, अगर हम सभी लोग, इवन मैं जो एक बार एवरेस्ट पे आ चुका है, कोई भी लोग, अगर हम सब लोग फ्लाइट में बंद होकर एवरेस्ट की समिट पर अगर हम लोग लैंड हो जाएंगे, तो वी ऑल विल डाई इन अ मिनट और 2 मिनट्स, क्योंकि हमारी बॉडी इतने कम एयर प्रेशर और कम ऑक्सीजन के लिए अडेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें वहां पर अपने आप को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा रूट के बारे में बताऊंगा कि दिस इज बेस कैंप। एवरेस्ट का बेस कैंप लगता है 5,000 मीटर पे, 5,500 मीटर पर, ये समिट है। तो बेस कैंप पहुंचने में लगभग 10 से 15 दिन लगता है। और फिर आपको ये 4 कैंप्स लगते हैं बीच में, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। तो इसका जैसे मैंने बताया ना, ऑक्सीजन वहां पर बहुत कम है, तो आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। एक्लेमेटाइज मीन्स आपकी बॉडी को आपको अनुकूल बनाना पड़ता है कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें आरबीसीज बढ़ाना होता है। तो वो कैसे बढ़ते हैं कि जब आप बेस कैंप पहुंच जाते हो, तो एल्टीट्यूड में हमेशा बताया था कि आप जैसे एक बार ऊपर गए तो उसमें क्लाइंब हाई स्लीप लो, मतलब आप एक ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो हम ऐसा बहुत बार करते थे कि बेस कैंप से आप कैंप 1 गए, फिर बेस कैंप आ गए, बेस कैंप से आप कैंप 1 गए, कैंप 2 गए, फिर बेस कैंप आ गए, बेस कैंप से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, और फिर बेस कैंप आ गए। तो ऐसा कई बार करते करते ना, कई बार वहां पर मेंटली भी फ्रस्ट्रेशन होता था कि हम कर क्या रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ जा रहे हैं, तो हाइट वाइज हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बट अगर उसी चीज को सोचें कि आप अपने आप को एक्लेमेटाइज कर रहे हो और रेडी कर रहे हो जो फाइनल समिट पुश होगा, तो ये जो एक टास्क होता था काफी चैलेंजिंग होता था, जिसमें आप खुद को पुश भी करना होता था, मोटिवेट भी करना पड़ता था। तो आपको कि कैसे ऊपर जाना है और नीचे आना है। तो इवेंचुअली मतलब यही लगता था कि आपका हाइट वाइज प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बट बॉडी इज प्रोग्रेसिंग, मतलब जो आपको फाइनल समिट पुश के लिए रेडी कर रही है। तो इस तरह का हम रोटेशन बेस कैंप, मतलब एवरेस्ट बेस कैंप पे करते हैं। और जब फाइनली हम लगभग ये एक्लेमेटेशन प्रोसेस 20-25 दिन का होता है, तो इस एक्लेमेटेशन प्रोसेस के बीच में ना कई बार, जैसे एक बार मैं कैंप 1 गया, वहां पर बेस कैंप आया, या कैंप 2 गया, तो ऐसा भी होता है कि कई बार हम कैंप में पहुंचे और वहां पर अचानक से वेदर खराब हो गया। मैं आपको आगे एक वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वेदर खराब हो गया तो वहां पर आपको 2 दिन 3 दिन वहां पर स्टे करना पड़ता है। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप टेंट है और आसपास पूरा बर्फ है, तो आप कहीं ज्यादा निकल भी नहीं सकते हैं। उसी टेंट के अंदर, टेंट का मैं एक आपको फोटो दिखाता हूँ। अब देखिए, एक जो टेंट है, एक इसी टेंट के अंदर आप 3 से 4 लोग हैं, 3 लोग या 4 लोग। तो कैसे आपको वहां पर खाना भी बनाना है, इसी के अंदर आपको दिन भी निकालना है, क्योंकि कई बार एक ही जगह पर बैठे बैठे बोरियत भी होती है। तो वहां पर जो एक्टिव रखना पड़ता है अपने आप को, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो जब हम लोग एक बार एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, तो फाइनल समिट पुश के लिए हम बेस कैंप से स्टार्ट करते हैं। कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं, देन कैंप 3, कैंप 4। और कैंप 4 है, उसकी हाइट है 8,000 मीटर, 26,400 फीट। तो इस वाले एरिया को ना डेथ जोन भी बोलते हैं, कि वहां पर ऑक्सीजन इतना कम है इस हाइट पर कि आपकी बॉडी रिकवरी नहीं करती है। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम हम स्पेंड करें, और इसलिए हमें कैंप 3 के बाद आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाते ही हमें ऐसा लगेगा कि हम सी लेवल पर आ गए हैं। वो ऑक्सीजन बस आपको थोड़ा सा हेल्प करता है, उससे बिल्कुल जो लो एयर प्रेशर है, लो ऑक्सीजन है, वहां पर आपको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह की लाइफ वहां पर होती है, कि आप देख रहे होंगे कि आपको स्नो भी मेल्ट खुद से ही करना पड़ता है, जो पानी बनाना है, तो पानी बनाना भी, माउंटेन में पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो पानी बनाना ही अपने आप में बहुत बुरा टास्क है। क्योंकि आपको एक गिलास पानी बनाने के लिए भी, जब आप सॉफ्ट बर्फ डालते हैं, तो पतीला या भगोना आप देख रहे होंगे, तो उसमें पूरा बर्फ भरते हैं, और वो जब मेल्ट होता है तो हल्का सा छोटा सा रह जाता है। फिर उसमें आप बर्फ रिफिल करते हो, तो 1-2 आपको इवन मतलब 1 बॉटल पानी बनाने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो बहुत ही स्लो होता है। और वैसे भी जब वहां पर हाइट इतना कम है, प्रेशर इतना कम है, तो स्टोव भी अच्छे से नहीं जलता है, और ठंडी के आसपास, तो बहुत हर चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इवन मेकिंग वाटर, मेल्टिंग वाटर, और फिर उसी पानी बनाओगे खुद के पीने के लिए भी और खाना बनाने के लिए भी, तो हर चीज में काफी टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी ये होता है।
और उसके अलावा जो इक्विपमेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सब कुछ आपके रक्सैक में कैरी करना है, आपको ये देखना है क्लाइंबिंग बूट्स के नीचे एक स्पाइक्स जैसा लगा हुआ है, तो ये आपको हेल्प करता है कि आइस में आप कैसे चल सकते हैं, या फिर जो ये जो मैंने देखा होगा आइस एक्स आप यूज करते हैं जब आइस पर ऊपर क्लाइंब करते हैं। सो इस तरह का मतलब ये फोटोज हैं जो मैं कुछ जर्नी के हैं। तो एक मैं आपको मैं बता रहा था कि जब एवरेस्ट मैंने 2017 में क्लाइंब किया था, उससे पहले मैंने 2015 में भी अटेम्प्ट किया था, और मेरे साथ में मैं और टाटा सिंह से एक पायो मुर्मू, हम दो लोग गए थे जमशेदपुर से। एंड इफ यू रिमेम्बर 15 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था नेपाल में 2015 में, एंड उस अर्थक्वेक में काफी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो उसका एक वीडियो है जब हम लोग, जिस दिन अर्थक्वेक आया था 25 अप्रैल 2015 को, उस दिन हम कैंप 2 में थे, और उस दिन नेपाल में अराउंड 10,000 लोगों की डेथ हुई थी, काठमांडू में खासकर, बट एवरेस्ट बेस कैंप में भी 18 से 20 जाने गई थी। तो उस अर्थक्वेक का एक छोटा सा वीडियो है, आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, सो एक वीडियो है, आप देखिए। जो ये बेस कैंप है, कैसे हम बेस कैंप में रहते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि एक छोटा सा, बोल सकते हैं एक छोटा सा परिवार और एक छोटी सी, ये सब टेम्परेरी होता है, बेस कैंप कभी परमानेंट नहीं होता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख पा रहे होंगे कि सब लोग अचानक से भागने लगे हैं, और अचानक से बर्फ का, ये दिखा आपको, बर्फ का पूरा ऊपर से एवलांच आ गया, मतलब पूरा Yes, वो sir. आके, ये पूरा आके और फिर सबके टेंट्स में कवर हो गया सब लोग जो। तो इसकी वजह से जो आपने वीडियो देखा, इसमें बेस कैंप में काफी डेथ हुई थी। तो जब हम लोग कैंप 2 में थे, तो कैंप 2 बेस कैंप से 2 कैंप ऊपर है, तो हम लोग भी वहां पर भी ऐसे ही एवलांच आ रहे थे, बट हम लोग, एक बार ऐसा था कि मैं कैंप 2 में, मतलब जब ये अर्थक्वेक आया तो जस्ट हम अपने टेंट के बाहर आए, और हमारे बगल वाले फेस, जो एवरेस्ट का फेस था, वहां से एवलांच आने लगा। तो पूरा मोमेंट, दिल की धड़कन बंद हो गई थी कि अब लगा कि नहीं, अब मतलब क्या पता यही एंड हो। बट उस टाइम पर वी वर लकी कि हम डायरेक्ट एवलांच के फॉल जोन में नहीं आए थे, एंड हमारी जान बच गई थी। बट उस दिन जैसे जब इतना बड़ा ये आया था न्यूज, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये न्यूज में आने लगा था कि एवरेस्ट पर इतना, मतलब नेपाल में अर्थक्वेक आया है, तो न्यूज में तो ऐसा भी दिखाने लग गए थे कि बेस कैंप के ऊपर जितने भी लोग हैं सबकी डेथ हो गई है, और हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो एवरी लाइक जो भी हम लोगों को जानते थे, मतलब हमारी फैमिली के लिए, मतलब मेरी मम्मी खासकर एंड बचेंद्री मैम, उन सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सिचुएशन है। बट बाय दैट इवनिंग, जैसे अर्थक्वेक सुबह 11 बजे आया, शाम तक उनको कंफर्मेशन हुआ कि हम लोग सेफ हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमसे नहीं हो पाता था, क्योंकि वहां पर जो वैसा मैं बता रहा था, कम्युनिकेशन का भी इतना चैलेंज होता है कि आप बेस कैंप और ऊपर के कैंप्स हम आपस में वॉकी टॉकी से कनेक्टेड होते हैं, एंड बेस कैंप देन काठमांडू एजेंसी से कनेक्ट होता है, एंड काठमांडू पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब फोन से हम बात कर सकते हैं। तो जैसे मैम का भी वही, बचेंद्री मैम का था कि अगर वो लोग सेफ है तो उनसे बात कराओ, तो बात डायरेक्ट हो नहीं सकती थी। तो काफी एक एंजाइटी थी रात भर कि ठीक है, ये तो कंफर्मेशन हो गया सेफ है, बट बात नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। नेक्स्ट डे मेरे को फाइनली एक क्लाइंबर थे हमारे साथ में, उनसे सैटेलाइट फोन मिला नेक्स्ट डे अराउंड 3-4 बजे, मतलब अर्थक्वेक के 27-28 घंटे बाद। तो जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि हम लोग सेफ हैं सब कुछ, मतलब तो उनको मतलब आवाज सुन के ही काफी उनके लिए, तो फोन पर जैसे रो रही थी, तो उनके लिए भी काफी मुश्किल था। तो ये 15 वाला जो एक्सपीरियंस था, इस टाइम हमारा समिट नहीं हुआ था, मतलब हम लोग जो ट्रेनिंग करके गए थे 2-3 साल, वो फाइनली समिट तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उसके बाद सारा एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया था। तो डिसअपॉइंटमेंट हमें हुई थी कि हम लोग समिट पर नहीं जा पा रहे हैं। बट अगर आप उसी चीज को देखें तो एक साथ में एक लर्निंग भी थी, क्योंकि बोलते हैं ना कि माउंटेन तो वही है, माउंटेन्स तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने हैं, और हमारे अगले मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहीं तक रहेंगे। हम तो बस, तो मतलब अगर हमारी जान है तो बोलते हैं जहान है, हम सेफ हैं तो हम 1 साल 2 साल बाद फिर क्लाइम करने आ सकते हैं। तो इसी चीज के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम 2015 में वहां से एक्सपीडिशन जो कैंसिल हुआ वापस आए। बट एक अंदर से एक वो था कि जैसे कई बार तो होता है कि लोग पूछते भी हैं कि जब 15 में आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो 7 वापस से जाने का कैसे प्लान बनाया, घर वालों को कैसे कन्विंस किया। नहीं तो कई बार होता है लोग बोलते हैं नहीं अब नहीं जाएंगे, बट एक अंदर था कि अर्थक्वेक आया है, वो जरूरी नहीं है हर साल आए। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो वन ऑफ द इवेंट्स होते हैं जो कभी कभी होते हैं। मतलब जो एक कोविड सिचुएशन है, वो कोरोना वाली ऐसी सिचुएशन है जो
जो 100 साल पहले इस तरह का जो पैंडेमिक हुआ था, बर्ड फ्लू हुआ था, जिसमें काफी मिलियंस लोगों की डेथ हुई थी वर्ल्ड वाइड, तो 1920 में हुआ था, आज से 101 साल पहले। तो अभी भी हमारे जनरेशन में या फिर अभी भी जो लोग जिन लाइफ जिस प्लेनेट पे प्रेजेंट है, किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि 100 साल पहले कैसे सर्वाइव किया। तो सबके लिए ही नई सिचुएशन है। तो ऐसा सिचुएशन वन ऑफ द वो है रेयर इंसिडेंट्स जो बहुत ही रेयरली होते हैं। जैसे नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था वो भी 60-70 साल में एक बार हुआ था। तो इसके बाद फिर मैंने मतलब जो गोल था कि नहीं 17 में फिर से जाएंगे, तो 2017 में मैंने फिर से अटेम्प्ट किया माउंट एवरेस्ट। एंड तो मैं एक छोटा सा वीडियो एक बेस कैंप और कैंप 1 के बीच में जब हम ऊपर जाते हैं तो बेस कैंप और कैंप 1 के बीच में खुम्बू आइसफॉल एक एरिया आता है जिसको क्रॉस करने में रफली 3 से 4 घंटे लगते हैं। और खुम्बू आइसफॉल सबसे डेंजरस एरिया है उस पूरे एक्सपीडिशन में, क्योंकि वहां पर जैसे अपनी मूविंग रिवर होती है ना, तो वहां पर ग्लेशियर्स बोलते हैं कि इट्स अ मूविंग ग्लेशियर, मतलब जो स्नो है और आइस है वो मूव कर रही है। तो आपको इमीडिएटली आंखों से तो नहीं देखते, बट अगर आप उसको टाइम लैप्स वीडियो देखें, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम देखें, तो यू विल सी कि उसके ब्लॉक्स हैं जो मूव कर रहे हैं, आइस ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं। तो एक ऐसे एक वीडियो है कि बेस कैंप में ना फिर बहुत सारे खुम्बू आइस फॉल में बहुत सारे क्रेवासेस होते हैं, तो आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो आइस वॉल के नीचे से निकलना होता है, तो हमेशा डर लगता है कि ये मेरे ऊपर से नहीं गिर जाए। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो खुम्बू आइस फॉल का है। तो आप देख रहे होंगे ये क्रेवास से कितना डीप है, उसके ऊपर ये एल्यूमिनियम का एक लैडर है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, इफ आई एम करेक्ट। नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, एक सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ सर क्लियर आ रहा है। आ रहा है अभी देख। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तो आपको क्रेवास दिख रहा होगा, ये पूरा आइस है, आइस क्रेवासेस जो मतलब बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं दो आइस वॉल्स के बीच में, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम लैडर लगाया हुआ है। एंड देन हाउ वी क्रॉस इट। आप देख रहे हैं ना वो आइस वॉल सामने, हम यहाँ से हम उतर के आ रहे हैं। और फिर तो कभी भी जब इसके नीचे देखते हैं तो हमेशा डर भी लगता है। एंड कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि क्या मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो उस टाइम पर आपको मेंटली, क्योंकि आप जितना ट्रेनिंग कर रखा होता है, तो ये सब चीज अगर आप ट्रेनिंग में जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वही एक्सपीरियंस आपको वहां पर सपोर्ट करता है। अब कोई विदाउट ट्रेनिंग चले जाएगा तो ऑब्वियसली उसको फिर तो ये इम्पॉसिबल है उसको क्रॉस करने के लिए। तो इसलिए एक अच्छी ट्रेनिंग आपको ये हेल्प करता है इन सब ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने में। तो जैसा आप देख रहे हो कि मतलब यहाँ पर एक गलती और हो सकता है आप रोप से लटक जाएं, और कई बार फिर रोप से लटक जाते हैं। तो मतलब रोप है सेफ्टी के लिए, बट यहाँ पर भी फॉल होता है तो इट कैन बी अ रिस्की सिचुएशन। हो सकता है आपको इंजरी हो जाए या फिर आपको निकालने में, वहां से रेस्क्यू करने में काफी टाइम लग सकता है। और ये सब जो भी है चैलेंजेस है 8848 ये 8000, हेलो आवाज आ रही है ना? यस। हाँ, तो ये सब 6000 मीटर के ऊपर है, मतलब 20,000 फीट के आसपास ये सब हो रहा है। तो वहां पर आपने कभी कोई देखा भी होगा, जब आप जैसे अभी आप घर में बैठे हुए हैं सब लोग, तो हमारा ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल है, हम बिल्कुल अभी नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहे हैं आप अपनी। बट जैसे अब होता है ना, आप एकदम से तेज भागते होंगे, 100 मीटर फुल स्प्रिंट भागते होंगे, तो कैसे आपकी सांस फूलने लग जाती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है ना। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं हम लगातार तेज से, तो आप मेकअप करते हैं अपनी बॉडी में अपने सांस को, मतलब बॉडी जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई है। तो उसी को कल्पना कीजिए जब हम 6000 मीटर 5000 मीटर पे, तो इवन जब टेंट में बैठे रहते हैं ना, तो वहां भी आपको इवन बैठे बैठे भी सेम थकान लगती है जैसे आप बहुत दूर भाग के आए हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का जो डेफिशिएंसी इतना ज्यादा है। मतलब बैठे बैठे आप थकान लगती है, आप अपना रक्सैक पैक कर रहे हैं या फिर आप अपने टेंट से उठ के डाइनिंग मतलब जो वहां पर खाने का जो एक कॉमन प्लेस है वहां तक भी जा रहे हैं, तो आपको थकान फील हो रहा है। आप पानी मेल्ट करने के लिए बर्फ खोद रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कितना ज्यादा आपने वर्कआउट कर लिया है। तो ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो थ्रू आउट द डे चलती रहती है। तो इसलिए मैं बता भी रहा था कि जैसे हम कैंप 3 के बाद, मतलब 23,000 फीट के बाद सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी लगाते हैं।
तो दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी एवरेस्ट क्लाइंब किया है, एंड उसमें रेनोल्ड मेस्नर थे जो इटली के, ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो 1980s में उन्होंने किया था। वो तो वैसे बहुत ही कम लोग हैं, नहीं तो हम लोगों को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन ऐसे कैंप 3 के बाद लगाना पड़ता है। सो एवरेस्ट का मैं फाइनल समिट पुश में मैं लेके जा रहा हूँ कि जब मैं फाइनल 26 मई की रात को जब हम कैंप 4 से निकले थे, तो उससे पहले ना वहां पर भूख भी बहुत कम लगती है, क्योंकि आपका जो हाई एल्टीट्यूड की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, तो आपको भूख भी लगना कम हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क नहीं करता है, तो आप बहुत कम खाना खाते हैं, बस पानी पीते हैं, सूप पीते हैं, मैगी खा लिया, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लिया, जो थोड़ा बहुत एनर्जी रहे, चॉकलेट खा लिया, बट हार्डली मतलब बहुत ही कम, जैसे जो हम दिन भर में यहाँ पर नॉर्मल प्लेन्स में खाते हैं उसका मे बी 20% आप वहां पर खा पाते हैं। तो उस टाइम पर जो आपके बॉडी में फैट रिजर्व में जो थोड़ा बहुत बच है वही काम आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा फैट है तो माउंटेन में लेके चले जाओ उसको, क्योंकि फिर चढ़ने में दिक्कत होगी। तो मतलब जो थोड़ा बहुत से आपको फिट तो रहना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत बॉडी में भी, इसलिए जब हम इस तरह के एक्सपीडिशन में जाते हैं तो वापस आते हैं तो काफी वेट लॉस भी होता है। तो वहां पर जब हम फाइनल समिट पुश के लिए जा रहे थे कैंप 4 से, तो कैंप 4 जो मैंने बताया था ना डेथ जोन जहाँ से स्टार्ट होता है, 8000 मीटर से जब रात में स्टार्ट किया, और हम लोग रात को 8-9 बजे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जनरली माउंटेन्स में क्या होता है आफ्टरनून के बाद वेदर काफी खराब होता है। और आप में से अगर किसी ने एवरेस्ट मूवी देखी होगी, एक एवरेस्ट मूवी आई थी जिसमें काफी लोगों की डेथ, वो एक्चुअल इंसिडेंट के ऊपर थी 1996, जिसमें काफी लोग रिटर्न आते वक्त स्टॉर्म में फंस गए थे, थंडर स्टॉर्म में, मतलब खराब वेदर में फंस गए थे, तो काफी लोगों की डेथ भी हो गई थी। इसलिए हम रात में निकल जाते हैं जिससे अर्ली मॉर्निंग सबमिट करें और वापस रिटर्न दिन तक वापस आप अपने सेफ कैंप में आ जाएं। तो जैसे ही हमने 26 मई को रात में 2017 में हमने कैंप 4 से स्टार्ट किया, एंड उसके बाद 4-5 घंटे चलने के बाद अराउंड 8,500 मीटर, मतलब वहां से बस सबमिट का 3-4 घंटे का रास्ता ही बचा था, बट मेरे को काफी ज्यादा थकान फील होने लग गई थी और मेरे को मतलब नींद भी आ रही थी बहुत ज्यादा। ऐसा होता था कि टेंट के अंदर तो नींद नहीं आती थी, बट वहाँ बेस कैंप में बैठ मतलब चलते वक्त नींद आ रही थी, तो थोड़ा सा मैं हेल्यूसिनेशन भी हो रहा था, मतलब मेरे को कई बार इमेजिनरी फिगर्स दिख रहे थे क्योंकि कंसंट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा था। तो सेफ्टी वाइज में ठीक चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ बिल्कुल एग्जॉस्ट होने, तो उस टाइम पर कई बार लग भी रहा था कि आप गिव अप कर देना चाहिए या आपको वापस चल देना चाहिए। बट उस टाइम फिर वही होता है कि जब बॉडी गिव्स अप, एक तो होता है ना ब्रेकिंग पॉइंट आता है कि अब नहीं हो पाएगा, तब आप अपने आप को मेंटली पुश करते हो। और एक खास बात मेरे को जब बचेंद्री मैम ट्रेनिंग वगैरह दे रही थी तो उन्होंने बताया था कि जब तुम बहुत ज्यादा थक जाओ तो हमेशा ये मत देखो कि समिट कितना दूर है, मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है, उस टाइम पर यही रखो कि तुम तीन स्टेप लोगे, फिर चलोगे, रेस्ट करोगे एक थोड़ा सा 10-20 सेकंड, फिर 3 स्टेप चलोगे। तो 3-3 स्टेप करते ही जब गोल बना लेते हैं ना बड़े गोल को, जब 3-3 स्टेप चलते ही तो 2-3 घंटे चलने के बाद अचानक से तुम्हें लगता है कि हाँ मैं सही में समिट के पास पहुंच गया। तो कैसे हम अपने माइंड को फोकस करते हैं। और माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जैसे आप क्रिकेट फुटबॉल देखते हैं, खैर अभी का टाइम अलग है जब खाली स्टेडियम्स में फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, बट जब पूरे ऑडियंस रहती है तो इतने सारे लोग आपको चीयर कर रहे होते हैं, ग्राउंड में 50,000 लोग आपको चीयर कर रहे हैं और आपके टीममेट्स हैं आपको चीयर कर रहे होते हैं। बट वहां पर ऐसा कोई नहीं होता है, आप हैं और आपके साथ में जो शेरपा हैं, जो एक जिनके विदाउट, सबसे खास बात है कि विदाउट शेरपा हम माउंटेन्स नहीं क्लाइंब कर सकते, क्योंकि वही लोग हैं जो सबसे डिफिकल्ट काम, जो रोप फिक्स करना, ऊपर के टेंट फिक्स करना, वही सब लोग करते हैं। तो वो है और आप अकेले हैं, तो आप दोनों हैं। और आप जब इस तरह के मूड में है तो पुश करने वाला आपको कोई नहीं है, आपको सेल्फ ही खुद को पुश करना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। और यही सोचते हैं कि अगर मैं इतना पास आके फिर से गिव अप करके चले गया तो शायद से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में फिर नहीं मिले। तो उसी, और वहां पर कई बार और खुद का भी स्टेट देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि समिट फीवर के चक्कर में मतलब लोग कंप्लीटली एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और वो कभी रिटर्न भी नहीं आ पाते हैं। तो मतलब इट्स एक बहुत ही, और वहां पर वैसे भी दिमाग कम चलता है, ऑक्सीजन कम है, तो जो डिसीजन मेकिंग है बहुत ही हाई स्टेज डिसीजन मेकिंग होती है। जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसका लाइफ और डेथ का भी सवाल होता है। तो छोटी छोटी, तो वहां पर मतलब जैसे मैं बताया मेंटली आप पुश करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। तो फाइनली मैंने वहां पर गिव अप नहीं किया, एंड ऑन 27th May at 6:25 AM आई वाज ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब 3 साल पहले। तो जब टॉप पर पहुंच गए थे तो सबसे पहले यू से मतलब एक फ्लैशबैक में वो मेमोरीज आती हैं जो तुम्हारे चैलेंजेस थे,
एंड यू से थैंक्स टू योर माउंटेन गॉड्स, जो आपके टीचर थे, जो पेरेंट्स थे, उनको याद करते हैं, फ्रेंड्स को। एंड फाइनली फिर ये भी रहता है कि अब नीचे भी उतरना है, क्योंकि एक्सपीडिशन ऐसा नहीं कि टॉप में पहुंच गए और हेलीकॉप्टर से आप नीचे उतर जाएंगे, आपको सेम रास्ते नीचे भी उतरना पड़ता है। और उस नीचे उतरते वक्त जनरली काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब तक हम वापस अपने बेस कैंप सेफली नहीं आ जाते, वी नेवर से कि एक्सपीडिशन इज कंप्लीट। एंड किसी भी समिट पर, एवरेस्ट से नहीं, कोई भी समिट हो, तो वहां पर आपको एक, आप समिट पर तो कितना रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बस, उसके बाद जर्नी है जो ज्यादा मेमोरेबल रहती है। एंड समिट पर आप ऐसा, उसके बाद एक अच्छी फीलिंग होती है, और साथ में जैसे अभी 2017 में मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था, उसके बाद भी प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी कुछ पीक्स वगैरह क्लाइंब किए, या फिर अभी जो हम काम करते हैं TSA, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में, तो एक रियलाइजेशन भी होता है कि आप समिट पर हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि जब समिट से आपको नीचे उतरना ही होगा, और लाइफ में नेक्स्ट समिट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक समिट से दूसरे समिट कूद जाओ, फिर से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, और फिर से वही हार्ड वर्क करते हुए आप नेक्स्ट समिट तक पहुंच पाते हैं। तो ये मेरा जो एवरेस्ट का एक्सपीरियंस था। बट इसमें जैसा कि कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हमें हेल्प करता है अभी के टाइम्स में, जैसे कि मैंने आपको जो दिखाया था ना कुछ, तो जैसे वहां पर आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना का टाइम्स था, तो जब शुरू में लॉकडाउन का जब वो आ रहा था कि लॉकडाउन होने वाला है, तो काफी लोग अपने घर में बहुत सारा राशन, क्या बोलते हैं उसको, भर के ले आ रहे थे। मतलब तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत सारा भर के ले आओ तो दुकानों में राशन खत्म हो जाए और जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पाए। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि आप इतना कम लाओ कि आप हर 2 दिन में जाना पड़े आपको बाजार, क्योंकि अगर आप हर 2-3 दिन में जाओगे तो आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हो एक्सपोजर का। तो समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम पर ये जो छोटी छोटी प्लानिंग है आपको बहुत काम देता है कि कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो जिससे कि आप अपना जो हफ्ते 10 दिन तक वो राशन चले, फिर से आप जाके उसको कर सकते हैं। और उसके बाद आप टीम में ही काम करते हैं, क्योंकि माउंटेनियरिंग में जैसा मैंने बताया कि आप आज क्लाइंब मैं करता हूँ, मेरा शेरपा करते हैं, बट उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ टीम में क्लाइंब कर रहे हैं और उनके जो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो और हमारे अभी इस सिचुएशन में हमारे साथ में हमारे जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वही टीम है, उनके साथ में हम इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया था कि आपने अभी देखा होगा कि जो लोग काफी ज्यादा मतलब घर में हैं, जैसा अभी मैम भी बता रही थी कि आप इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं कि कई बार हम हमेशा एक चीज के पीछे भागते रहते हैं। जैसे अभी का एक ऐसा टाइम है कि सब लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये सिचुएशन सबके लिए सेम है। तो उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पीछे हो जा रहा हूँ या मैं पीछे हो जा रही हूँ, क्योंकि कई बार सोचते हैं कि मैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बट ये, या फिर हमारी पढ़ाई पीछे हो जा रही है, बट ये आपके नहीं, पूरी दुनिया के साथ सेम हो रहा है। जैसे कंपनीज है ना, कंपनीज आपस में सब लोग कि हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है, तो सारी कंपनीज के साथ सेम हालत है, सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेम प्रॉब्लम है। तो उस चीज में हमें जल्दी से मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। और यही एक मतलब ये अभी जो सिचुएशन है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे जो लोग फिटनेस के लिए काम करते हैं, तो मतलब जैसा अभी पहले मैम भी बता रहे थे कि आपका एक स्केड्यूल अगर आप बना सकते हैं हर दिन का, तो आपको जरूर हेल्प करेगा। जैसे आप हर दिन एक आपका स्केड्यूल रहे कि नहीं, मैं मॉर्निंग में उठ के आधे घंटे या शाम में भी एक फिटनेस का मैं ½ एन आवर का कुछ करूंगा। तो वो फिटनेस में कुछ भी, काफी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आजकल आप घर में ही कर सकते हैं, कोई आपको वेट नहीं चाहिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो ये सब आपको मेंटली एंड फिजिकली हेल्प करेगा। तो एक तो आपका ये इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करेगा कि आपका इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और मेंटली भी आपको मोटिवेट रखेगा। फिर कुछ लोगों को रीडिंग की हैबिट होती है, तो वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। और इसमें बुक्स में भी काफी इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जब हिटलर जब नाजी कैंप्स थे जर्मनी में, उसके बारे में जब काफी बुक्स उस टाइम पे लिखी हुई है, तो जब हम उन बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें सिचुएशन को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है, और ग्रेटिट्यूड वाली एक फीलिंग भी हेल्प करता है कि हाँ, कि उन लोगों के साथ तो इतने सारे चैलेंजेस थे, फिर भी वो लोग सर्वाइव किए, तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूडनेस जो आती है, तो वो एक हेल्प करता है चीजों में। आप एक अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अपना जो गाने हैं जो आपको
मेंटली बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं। और खासकर यही टाइम है जो उसमें आप फैमिली, तो कई बार जो होता है ना, हम अपने जब हम भाग दौड़ के जिंदगी बनाते हैं तो हमारे पास फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये टाइम है हमें अपने बॉन्ड स्ट्रांग रखने का, काफी चीजें हम उनके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे गेम्स के थ्रू। एंड उसके बाद आई थिंक आप लोगों को एक टाइम भी मिल रहा है कि जो घरों के बाहर हम अपने कितनी बर्ड्स हैं, ये जो बर्ड्स की आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके आसपास कितनी सारी बर्ड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितनी स्पीशीज हैं, आप काउंट ऐसा कुछ काउंट कर सकते हैं। आप सनराइज सनसेट का पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम माउंटेन्स में रहते थे तो टेंट के बाहर यही देखते थे कि आज 6 बजे सनराइज हुआ है, तो कल 6, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो सनराइज का टाइम धीरे धीरे कम होते आता है, या फिर ठंड में जा रहे हैं तो टाइम बढ़ते आता है। तो कैसे हर दिन 1-1, 2-2 मिनट का डिफरेंस आता है। तो जो साइकिल ऑफ हमारा जो सनराइज सनसेट की साइकिल है वो सब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ नया सीख सकते हैं, जो आपकी हॉबी है जिस पर आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, कुछ आप नया सीख सकते हैं। और काफी कुछ आजकल मेंटल पजल्स, मेंटल गेम्स, ये सब होते हैं सॉल्व करने के लिए। और खास करके जो सोशल मीडिया वाला जो आ गया और इतना सारा जो न्यूज आ रहा है, न्यूज में काफी नेगेटिव न्यूज भी होती है, तो काफी स्ट्रेस भी होता है उससे कई बार। तो उसमें वही है कि फेक न्यूज कम से कम देखें और कोशिश करें जो भी आप न्यूज देख रहे हैं वो उससे आपका मोरल डाउन नहीं हो। और नहीं तो जैसे कई बार मतलब जैसे पर्सनली मैं ऐसा करता हूँ कि हफ्ते में एक बार, एक दिन, मतलब जैसे संडे को मैं अपना मोबाइल का इंटरनेट बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ, या फिर मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, आपने एक फ्रेज सुना होगा कि हम लोग हमेशा इतना वायर्ड उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर कभी हम खुद को टाइम निकालें, थोड़ा सा टाइम निकालें, तो आपको हेल्प करेगा फिर से अपने कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये आपको जरूर हेल्प करता है, क्योंकि हमेशा हम जो मोबाइल में लगे रहते हैं ना, वो उस चीज से बाहर निकलने को हेल्प करता है। सो यही सब चीजें। और ये इसको ये देखिए कि हम अभी, हमारी तबीयत तो खराब नहीं है, तो हम तो बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, तो हमें डिमोटिवेट क्यों होना है? मतलब जो पॉजिटिविटी है उसको लाने की कोशिश करें। और कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसमें कोई गलत दिक्कत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हमेशा आते हैं और ये पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे तो अपने आसपास जो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली में है, या फिर जिससे आप अपना जो माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं, तो उस पर बात कीजिए या फिर कोशिश कीजिए कि आप कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और कई बार इस सिचुएशन में ऐसा भी होता होगा कि लोग सोचते हैं कि मतलब शराब पी लें या फिर कुछ ऐसी चीज कर लें तो क्या पता स्ट्रेस रिलीज करने में काम आए, तो वो बल्कि डिप्रेसेंट्स होते हैं। आपको फॉर अ मोमेंट अच्छा लगेगा बट कुछ टाइम में वो डिप्रेस करता है आपको। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे कि मैं मतलब अभी जो माउंटेनियरिंग का जो इंसिडेंट बता रहा, जो हमारा एक्सपीरियंस बता रहा था, तो काफी लोग हैं जो अगर आपने जमशेदपुर में प्रेमलता अग्रवाल का नाम सुना होगा, तो वो भी हाउसवाइफ थी और उन्होंने एक कैसे एवरेस्ट क्लाइंब किया, जो भी चैलेंजेस आए थे। अरुणिमा सिन्हा जो एम्प्यूटी थी। तो हर ऐसा नहीं है कि हमें एक्चुअल में माउंटेन क्लाइंब करना है, कोई एवरेस्ट क्लाइंब करना है। हमें माउंटेनिंग क्लाइंब नहीं, हर किसी की लाइफ में एक अपने अपना जो भी आपका गोल है वही आपका एक एवरेस्ट है, हम उसको कैसे पहुंच सकते हैं उस गोल की तरफ। तो ये एक छोटा सा मतलब मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो हम जरूर उसको बताएंगे, कोशिश करूंगा। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thanks sir. a lot, sir. Salute to your I high have a esteem, question. sir. Salute. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, students, are you ready? You want to It is a pleasure talk to sir? have you on with us, sir. Any of you? Thank Can you, you hear me, sir? Yes, sir, I can hear you. Sir, Okay. we must salute you, sir. You कौन are the है? real नाम heroes बताओ. of our society and of our country, definitely. Hello. Sir, I have many queries related to, mountaineering. Hello. And one of it that I think you will address it. Who are these Sherpas? Are they a community, a Nepali community, and how they are equipped, so equipped that they help you people in such a steep and hard condition? Kindly please give more light on these people also. ओके। सो सबसे पहले तो मैं अपना जो शेरपा थे मेरे, उनका भी आपको फोटो दिखाता हूँ अगर आप देख पा रहे हैं तो शेरपा जो है कम्युनिटी है जो ईस्टर्न
तिब्बत से निकली थी और ये लोग हमेशा माउंटेन्स में ही, वॉइस इको हो रहा है, एक सेकंड, हाँ, ये लोग हमेशा पहाड़ माउंटेन्स में ही रहते हैं, वहीं की कम्युनिटी है। तो शेरपा लोगों के, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. I can hear you. हाँ, राइट, Yes, राइट। तो शेरपा लोगों के बारे में बोला जाता है कि वो लोग हमेशा बचपन से ही पहाड़ों में रहे, जैसे उनका जो बर्थ है वो भी 14,000-15,000 फीट पे, तो जेनेटिकली उनके जीन्स में चेंज आ गया है, जिससे मतलब जो चीजें हमें मतलब 13,000-14,000 पे हमें दिक्कत लगती है, उनका एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो फिजिकली काफी फिट होते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, और नेपाल और तिब्बत का कम्युनिटी है। एंड जो भी आपका एवरेस्ट का अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो सबसे पहले जब 1953 में एवरेस्ट क्लाइंब हुआ था तो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे दोनों ने क्लाइंब किया था। तो तेंजिंग नोर्गे वाज वन ऑफ द शेरपा, एंड तेंजिंग नोर्गे का वो एवरेस्ट पर ऐसा नहीं पहला अटेम्प्ट था, उससे पहले उन्होंने डिफरेंट, तो जब एवरेस्ट की जो हिस्ट्री है सबसे पहले एवरेस्ट 53 में क्लाइंब हुआ, बट उससे पहले मोर देन 10 to 12 अटेम्प्ट है जब लोगों ने कोशिश की थी एवरेस्ट को क्लाइंब करने को, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो हर एक्सपीडिशन में शेरपा सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता था, और शेरपास के जो भी मतलब सबसे बेस कैंप सेट करना हुआ, जब ऊपर जब टेंट्स जाते हैं तो कैंप 1 कैंप 2 वहां पर टेंट्स भी ये शेरपा लोगों की वजह से ही हम क्लाइंब कर पाते हैं, कि विदाउट देम इट्स ऑलमोस्ट वेरी इम्पॉसिबल कि हम क्लाइंब कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब भी हम वापस आते हैं, जैसे जो भी कंट्री में जो वापस आते हैं, शेरपास के बारे में पता भी नहीं चलता लोगों को कि हाँ वो भी क्लाइंब किए हैं, क्योंकि वो एक तरह से उनका प्रोफेशन ही हो गया है। वो जो लोग हैं नेपाल के, जैसे कई शेरपा ऐसे जिन्होंने 5 बार 6 बार, एक शेरपा जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है उन्होंने 22 टाइम्स एवरेस्ट क्लाइंब किया है, तो उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमें हमेशा मतलब बताना चाहिए, और उनके एफर्ट्स के साथ में ही हम उस चीज को क्लाइंब कर पाते हैं। तो ये शेरपाओं के बारे में आई थिंक आपका आंसर मैं दे पाया। Yeah, thank you, sir. They should be recognized, है ना, वर्ल्ड वाइड उनको राइट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। राइट सर। तो उनको काफी आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर रिकॉग्नाइज भी करते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज नीड टू डू मोर। Sandhya ma'am, please take over the mic and ask for the other student to ask question. हेलो, गुड आफ्टरनून। और यदि कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो शिवान सर। Yes ma'am, yes ma'am. ये कोई और स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको बता सकते हैं। स्टूडेंट्स if you have question आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। सर आप जरा चैट देखिए, हो सकता है चैट पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हो। ओके, एक सेकंड। नहीं, अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को। हेलो, हाँ sorry, Shivan sir. There is a question from Farah Naz. राइट On the chat. Excuse me, 1 minute sir. संध्या मैम बाय मिस्टेक आउट हो गई हूँ, है उनको थोड़ा फिर से ज्वाइन कराइए, उनका मैसेज है। हेलो, ठीक है, आप ज्वाइन करवा दीजिए। तो फिर से ज्वाइन कराइए, वो बाय मिस्टेक आउट हो गई हूँ। यस प्लीज कैरी ऑन, थैंक यू। हेलो सर फरहान नाज का क्वेश्चन है। हाँ, मैं आंसर बता रहा हूँ। 15 में जब आप वापस आए तो आपने अपने आप को फिर से कैसे मोटिवेट किया? जैसा मैं 15 में डिसअपॉइंटमेंट जब हुआ था, तो एक तो मेरा को था कि मतलब जो माउंट है, मतलब जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, एक बार फिर से मेरा एम था कि फिर से जाऊंगा। एंड वही मैंने सोचा कि 15 में उसका मेन रीजन था कि जब अर्थक्वेक आया था, तो ऐसा नहीं है कि वो अर्थक्वेक फिर से आएगा 17 में, क्योंकि होता है ना कि कोई भी चीज, मतलब ये मान सकते हैं कि कोई होना तो जो हो गया, शायद इस टाइम वो नहीं होगा। तो उसी में और फिर मैंने 2 साल और ट्रेनिंग की और फिजिकली और मेंटली किया, तरह की मेरी प्रिपरेशन थी, उससे ज्यादा प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ 20 में। तो इस तरीके से खुद मोटिवेट किया एंड कोशिश की
मतलब अटेंड करते हैं। हमारी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, सर। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर पंकज सर हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं सर, he wants to ask you a question. Okay. पंकज सर प्लीज कंटिन्यू। सर वो फूडिंग आप लोगों की कैसी रहती है सर? वहाँ ऊपर में कैसे क्या क्या खाते हैं सर आप लोग? सो खाना तो जैसे बताया राइट, तो बेस ना इसका जो 17,000 फीट दाल चावल ये खा लेते हैं। के ऊपर आपको बहुत ही कम भूख लगती है, तो आप लिक्विड डाइट जैसे मैगी या हलवा टाइप, मतलब जो है ना जल्दी से आप खा सकते, जल्दी डाइजेस्ट सकते वो चीज जाते हैं, न्यूट्रिशन पर काफी सकते हैं। हम चॉकलेट्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, तो ये सभी आप चीजें खा पाते हैं, बहुत ज्यादा लगती है। एंड बेस कैंप, हाँ फिर भी तो जब भी हम बेस कैंप से ऊपर जाते थे तो 1-2 दिन का रेस्ट हम बेस कैंप में करते थे, और उस वक्त हम जितना ज्यादा हो सके रिफ्यूज करने का कोशिश करते थे। और एक चीज था सर, अभी बहुत ज्यादा ये चला था कि वहां पे भी बहुत सारे मैंने गंदगी कचड़ा बहुत वहां भी जमा हो गया। जितने माउंटेनियर जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ कचड़ा निकालते चला जाता है। तो अब क्या प्रोसेस वो क्लीनिंग का वो है या वो वैसा ही रहता है? सही, आपने बहुत सही बोला। तो इसमें जैसा कि एवरेस्ट का एक डाउन साइड है, ज्यादा कमर्शियलाइजेशन भी हो गया है, काफी लोग आजकल भी जाते हैं, लोग ने कम ट्रेन होती है, बहुत कम एक्सपीडिशन हुए होते हैं, बहुत कम किए होते हैं, वो सब चीजों के बाद जाते हैं तो जरूर मतलब सेफ्टी पॉइंट से भी बढ़ता है। आपने देखा वहाँ पर भी ट्रैफिक जहाँ कुछ न्यूज मतलब कोई है आपसे आगे है या फिर इसकी ट्रेन सही से नहीं है, तो बाकी लोगों को भी करना पड़ता है। काफी इश्यूज है सर। एक टेंटेटिव कॉस्टिंग क्या आती होगी? एक आदमी अगर ऊपर जाता है तो एक अमूमन खर्च क्या होता है? सो एवरेज का जो रफली अराउंड 20, जिसमें 8 गवर्नमेंट फीस लेता है, मतलब एवरेज में आ रहे तो वहाँ परमिशन का 8 लाख है, सो 20 लाख कॉस्ट आती है इक्विपमेंट पर। सर रिस्पॉन्डिंग एक मिनट, आप पंकज सर ना म्यूट कर, हेमंत सर की बात हमको पंकज सर म्यूट करिए मैडम। हाँ हाँ म्यूट, पंकज सर पापा म्यूट कर दीजिए, तो हेमंत सर हमको रिसाउंडिंग नहीं हो रही है। सो उसमें एनवायरमेंट के चेंजेस भी तो आजकल है कि के ऊपर मतलब टॉयलेट भी है, जो आपको एक बैग होता है उसमें कैरी करके नीचे बना होता है, क्योंकि उस साइड पर ना कंपोज भी होता है, ठंड में वो कंपोज होता है और इतने सारे लोग हैं, तो एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस आया है, बट उसमें साथ में एक इंडिविजुअल जो टीम आ रही है उसकी होती है, और माउंटेन्स में आते हैं तो कर रहे हैं, बस एज अ रिस्पॉन्स वापस लेके आना चाहिए। सर गजाला महमूद का एक क्वेश्चन है कि वो पूछ रही हैं कि कितना मुश्किल था आपके लिए माउंटेनियरिंग स्टडीज के बाद एज अ पैशन टेकअप करना, या कितना आसान था? तो शुरू में तो थोड़ा मुश्किल था, रजिस्टर भी था फैमिली से, एंड जो कलीग्स थे मेरे वो भी बोलते थे कि ये कैरियर वाइज एक अच्छा चॉइस नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। बट मेरा ये था कि मेरे को क्या बोलते हैं, मतलब मैं जो होता है ना कि सबसे पहले आसपास जो लोग बोल रहे हैं, अगर आप अंदर से आपको लगता है जो आपका ट्रू कॉलिंग जो बोलते हैं, अंदर से लगता है कि आप इसमें कन्विंस्ड है, सेल्फ कन्विंस्ड है, तो फिर आप वो लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं। तो मुश्किल था, चैलेंजेस थे, बट मेरे को मतलब मेरे को एक था कि ये मेरा पैशन है तो मैं इस चीज को कर सकता हूँ, तो फिर मैंने इस रूट को लिया। एंड कई बार इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, बट जो डिसीजन लिया है आपको उस पर परसिस्टेंट रहना पड़ता है, डिटरमाइंड रहना पड़ता है, तो फिर वो हो जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है
कि आपके पेरेंट्स आपको कितना एनकरेज किए? सो मेरा मम्मी तो मेरे मतलब फादर की डेथ काफी पहले हो गई थी जब मैं छोटा था, तो मेरी दो छोटी सिस्टर हैं, तो मम्मी को शुरू में काफी मुश्किल हुआ था, उनको डर भी लगता था। बट फिर उनको एक ये भी था कि जैसे मेरे को बचेंद्री मैम भी काफी सपोर्ट करती थी, तो वो घर पर जैसे बताती रहती थी कि ट्रेनिंग वगैरह इसका अच्छा है। तो शुरू में मुश्किल थी, बट उनका फिर सपोर्ट मेरे को बाद में मिलता रहा हमेशा से। सर गुरु चरण गोप का एक सवाल है सर कि माउंटेनियरिंग करने के लिए शुरुआत से सबसे पहले क्या करना जरूरी है? हाउ वन कैन बिकम अ माउंटेनियर? सो माउंटेनियरिंग के लिए आपको माउंटेनियरिंग कोर्स होते हैं जैसे बेसिक। तो सबसे पहले तो कोर्स से पहले आप जो छोटे ट्रैक्स होते हैं ना, जैसे 1 डे ट्रैक 2 डे ट्रैक, आप उनमें जाइए, पहले देखिए आपको कैसा बॉडी फील कर रहा है, आपका कैसा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। आप जो चैलेंजेस हैं वहाँ पर 1 वीक 10 डेज का जो ट्रैक्स हैं, छोटे ट्रैक्स कीजिए। अगर आपको वो अच्छा लगता है देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एंड बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने के बाद एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स आप कर सकते हैं। तो जैसे हमारा किसी भी कॉलेज के लिए मतलब किसी भी डिग्री के लिए ग्रेजुएशन करना होता है, तो माउंटेनियरिंग कोर्स जो होते हैं बेसिक और एडवांस, वो पहली स्टेप्स हैं, और उसके बाद फिर आप एक्सपीडिशंस करते जाएंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल सर अर्चना का सर, वो ये है कि आप माउंटेन पे इतने हाई एल्टीट्यूड पे फायर कैसे और मतलब वो करते थे, बर्न करते थे? नरेश, इतने हाई एल्टीट्यूड पर फायर आग आग कैसे? कैसे जलाते? हाँ, आग आग हम जलाते, तो हम स्टोव्स लेकर जाते हैं, एक बर्नर जो मैंने दिखाया था फोटो में। तो आप एक मैच बॉक्स भी आपको लेके जाना होता है, तो स्टोव्स को ही आप जलाते हैं मतलब वहाँ पर। तो जो खाली जो स्टोव मतलब उनका एक बर्न वो होता है, गैस होती है छोटे छोटे, तो मतलब एक गैस लगभग 3 से 4 घंटे चलता है। तो फिर खाली वाले होते हैं उनको हम वापस लेकर आ जाते हैं, तो हमको काफी सारे वो लेकर जाने पड़ते हैं रिफ्यूल करने के लिए। सर एक और सवाल है सर कि आप बैकपैक का वजन कितना रहता है जो आप लेके चलते हो? सो एक्सपीडिशन टू एक्सपीडिशन डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम वेट मैंने किसी एक्सपीडिशन उठाया तो इट वाज अराउंड 25-26 केजीज, बट एवरेज 15 से 18 किलो तक, 15 केजीज के आसपास एवरेज वेट रहता है लगभग। यस शुड शिवान। हाँ, फैकल्टीज कोई क्वेश्चन मैडम अगर पूछे तो बताइए। संजय मैडम। One more question query is from one more student, and she is Kulsum Ara. Kulsum Ara has asked, sir, in 2015 when you come back, how you convince your parents for the next attempt? Sir, आप हाँ मैम, आगे अटेम्प्ट के लिए कैसे अपने पेरेंट्स को समझा सके सर? सो इसका मैंने मैम बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। तो 15 में जब अर्थक्वेक हुआ था, एंड वो ऐसा था कि मैंने 15 में एनालाइज किया कि मेरा फेलियर क्यों हुआ है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं फेलियर्स होते ही हैं हर लाइफ में भी। तो उसमें था कि अर्थक्वेक हुआ था, और जो वंस इन रेयर मोमेंट था, शायद से 17 में फिर नहीं होगा। तो जब 15 से जब वापस आया 17 में, तो 2 साल में एक तो हमने फिजिकली और मेंटली खुद को और प्रिपेयर किया, तो ट्रेनिंग भी अच्छी हुई थी। और उसके बाद मेरे को पेरेंट्स को कन्विंस करने में मैंने तो बताई, और मेरा बचेंद्री मैम ने भी हेल्प किया था थोड़ा कि ये घर पर कि ये ट्रेनिंग इसने अच्छी की है। मतलब होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम होनी है तो कहीं भी कुछ हो सकता है, तो मतलब उसी पॉजिटिव थोड़ा टाइम लगा, बट कन्विंस हो गए थे। ओके, सो फैकल्टी मेंबर्स, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सर से बात करना चाहते हैं? सर एक स्टूडेंट और आयशा हम लोगों की पूछ रही हैं कि क्या आप शुरू से ही ऐसे थे, या आपको किसी ने मोटिवेट किया, या आप किसी से मोटिवेटेड हुए और तब इस तरह के काम के लिए आगे बढ़े माउंटेनियरिंग के लिए? तो शुरू से तो मैंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कोटा का रहने वाला हूँ, राजस्थान का। तो वहाँ पर हमेशा बचपन से ही होता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो कॉलेज जाने के बाद जब मैं सर को कोई सुन पा रहा है? नहीं ऑडिबल नहीं है। नो मैम। सर
हेलो सर सर सर, आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। सर वी आर नॉट एबल टू अभी आ लिसन। आवाज? हाँ अभी आ रही है सर। हाँ अभी आ रही है। सॉरी, हाँ सॉरी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं कोटा का रहने वाला हूँ, राजस्थान का। तो वहाँ पर शुरू से ही ये रहता है ना कि पढ़ाई करनी है, तो मतलब कभी माउंटेनियरिंग का तो कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था बचपन से ही। एंड जब मैंने कॉलेज में भी माउंटेनियरिंग कोर्स किया था तब भी यही था कि कॉर्पोरेट में ही ज्वाइन करेंगे। बट आफ्टर स्टिल ज्वाइन करने के बाद और खास करके बचेंद्री मैम से मिलने के बाद मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और मैंने काफ़ी माउंटेनियरिंग की बुक्स भी पढ़ी थी। तब फिर मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने डिसाइड किया। तो हाँ, ये मैंने कभी बचपन से नहीं सोचा था, पिछले 7-8 सालों में ही ये सोचा और ये मैंने इसको परस्यू किया। तो कई बार होता है हर Thank you, किसी के sir. लाइफ में कुछ मोमेंट्स आते हैं जब उनको लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए। तो उस टाइम पर जो बोलते हैं लीप ऑफ फेथ, तो उस टाइम पर लीप ऑफ फेथ में आपको एक स्टेप कई बार पीछे भी आना पड़ सकता है, बट अगर आप खुद कन्विंस चाहिए, तो सेल्फ कन्विक्शन बहुत जरूरी है उस वक्त। थैंक यू सर। मुझे लगता है स्टूडेंट्स के कुछ एक बार फैकल्टी मेंबर्स और कर रही हूँ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। Should we proceed? Yes, Sir, ma'am. We should proceed. Mr. Gupta has inspired us to achieve our goals without fear and hesitation. Sir, thank you very much. Sir, thank you. Thanks to you. आपके experience से हम लोग बहुत सीखे. Even we are very much आज अभी के सेल्फ स्टीम से हम लोग भर गए हैं, मोटिवेशन से हमारे स्टूडेंट्स अभी भर गए हैं, इवन इन द एट द एज ऑफ दिस टाइम ऑफ क्रिटिकल टाइम ऑफ कोविड-19. सो वंस अगेन थैंक यू सर. सर का जो सफर रहा है वो बहुत मुश्किल सफर रहा है, हम लोग सभी जानते हैं. इन्होंने बहुत चैलेंजेस लिया है, ओन किया चैलेंजेस को, और उस चैलेंजेस को इन्होंने पार किया है. माउंटेन्स, एवरेस्ट एंड एवरेस्ट जैसे बहुत सारे माउंटेन्स को इन्होंने चैलेंज के तौर पर लिया और उसको अपॉर्चुनिटी बनाकर उन्होंने अपने लाइफ को एक नई दिशा दी. स्टूडेंट्स, ये समय हम लोगों के लिए कोविड-19 का भी इसी तरह का है, माउंट एवरेस्ट की तरह है. एंड दिस इज द टाइम कि इस चैलेंज को हम लोगों को अपॉर्चुनिटी के तौर पर अचीव करना चाहिए, अवेल करना चाहिए. वन मोर थिंग, कुछ जो बातें सर ने बताई वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली थी. जो एवलांसेज में आप परेशानी में पड़े, so it was really, मैं being a geography student I can understand कि avalanche क्या होता है और किस तरह से उस समय एकदम फ्री हवा चलती है और किस तरह से वो स्लाइडिंग होता है और किस तरह से लाइफ थ्रेटनिंग वहां पर हो सकती है. पल पल उस समय का बहुत ही डेंजरस होता है और बहुत ही अपने आप को जीने मरने की स्थिति होती है. तो सर आई कैन अंडरस्टैंड. तो आपके इस हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ. आपके मोटिवेटिंग जो वर्ड्स थे वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल हुए. सर, आपने जो 2-3 बातें कही वो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. इवन फैकल्टी मेंबर्स, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, द फिटनेस के लिए प्रैक्टिस करना, एवरीडे फिटनेस के लिए प्रैक्टिस करना और तरोताजा हो करके फिर से अपने को काम के लिए तैयार करना. Then the next work is teamwork. We faculty members follow this thing, teamwork. हम लोग का teamwork बहुत अच्छा होता है. स्टूडेंट्स, आपके लिए भी ये बहुत मोटिवेटिंग बात है कि आप टीमवर्क कीजिए, सेल्फ स्टीम को बनाए रखिए. और एक और बात सर ने जो बोली वो बहुत खास है. सर, मैं उसको अंडरलाइन करना चाहूंगी आपके ही वर्ड्स को, कि इस समय बहुत सारी खोई हुई चीजें जो हम अपने दौड़ भाग में खो देते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और फैमिली को, फूड को, ये सब चीज हम लोग इस फ्री टाइम में प्राप्त करें. फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूड, खूब खाना बनाना भी आजकल चल रहा है सर. सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है. जो खास बात सर ने कही वो कही कि मेडिटेशन भी करना चाहिए. बाहर की यात्रा बंद हो गई है, एक्सटर्नल जर्नी यदि बंद हो गया है तो इंटरनल जर्नी किया जाए, अंदर की यात्रा की जाए, खुद की यात्रा की जाए. ये बात आपने कही.
और आपने एक और बात कही कि हम लोग को अब नेचर को एंजॉय करना चाहिए। बहुत आर्टिफिशियल लाइफ हम लोगों ने लीड किया है, अब नेचुरल लाइफ और नेचर को एंजॉय करना चाहिए। बर्ड्स को देखें, नेचर को देखें, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें और उसको अप्रिशिएट करें और उससे लर्न करें। रीडिंग हैबिट्स को हम जिसके जो हैबिट्स जो पैशन है उसको लोग फॉलो करें और आगे बढ़ें। तो बहुत सारी बातें आपने बताई सर। मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश की आपकी बातों को, राइट सर? यस मैम, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया है। इतना अच्छे से मैं बता नहीं पाया, उससे ज्यादा अच्छा आपने समराइज कर दिया है। आपने तो बहुत अच्छा से बताया सर, और मैंने कोशिश की है कि उसको मैं समेट सकूं। सो स्टूडेंट्स, सर को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दो वर्ड्स के बाद, अपने दो सेंटेंसेस के बाद मैं अपने HOD डॉक्टर सुचिता भूया को इनवाइट करूंगी कि हमारे ये दो एमिनेंट जो हमारे स्पीकर्स आए थे उनको थैंक्स बोले, फॉर्मल थैंकिंग दें। हालांकि इस समय, इस मुश्किल दौर में जो हमारे स्पीकर आकर के इतना अपना समय दिए हैं, इसको थैंक्स जैसे वर्ड से हम लोग रिटर्न तो रेसिप्रोकेट तो नहीं कर सकते हैं, पर रस्म अदायगी तो जरूरी होती है। सो मंजिलें दूर हैं तो क्या हुआ, मंजिलें दूर हैं तो क्या हुआ, रास्ते मगरूर हैं तो क्या हुआ, ऐ खुदा मुझे हौसला तो दे, ऐ खुदा मुझे हौसला तो दे। सो इसी वर्ड्स के साथ मैं बहुत प्यार से डॉक्टर सुचिता भूया को इनवाइट करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मैडम प्लीज। थैंक यू मैडम। मैं आपके इनविटेशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। और मैं सबसे पहले हमारे जो स्पीकर, गेस्ट स्पीकर हैं, सुनैना मैडम और हेमंत सर जो TSFA के हेड हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो सुनैना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिन्होंने हमें एक मेंटल स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स और इस ड्यूरिंग कोविड-19 के पीरियड में जो इन्होंने बताया है, ये वाकई बहुत ही नॉलेजेबल है। क्योंकि इस पीरियड में नेचुरली हर व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर्स हो या पेरेंट्स हो या ऐसे कोई भी बच्चे हों, तो वो ये सोच ही रहे हैं कि हम किस परिस्थिति में हैं और क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो नेचुरली हम जानते हैं कि यहाँ पर मैडम सुनैना ने हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी, जिसमें मैंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ये तो पीरियड ऐसा है जिसमें अपने आप को ये सबको समझना है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सबके साथ हो रहा है। यदि हमारे साथ हो रहा है, हमको यदि ये प्रॉब्लम है, तो नेचुरली सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये कुछ नया नहीं है, कुछ नया चीज नहीं है, या कुछ नया प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट नहीं हो रहा है। ये सुनैना मैडम ने कहा, और ये सही बात में हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे लिए ये बहुत समझने की बात है कि हर स्टूडेंट्स, हर टीचर्स के साथ ये नया सिचुएशन को हैंडल करना है, जिसमें हमारे हेमंत सर ने भी हमें कहा कि हर सिचुएशन को, जैसे इन्होंने कहा कि माउंटेनियरिंग के समय में हर एक पल में एक नया सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें वो एक्लिमेटाइजेशन करना उनको पड़ता है। तो वैसे ही हमें भी उस पीरियड में, ये ऐसा पीरियड है, हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स, हर एक टीचर्स अपने आप को इस परिस्थिति में एक्टिवाइज करे, जिससे कि हम अपने आप इस परिस्थिति से उबर पाए। तो नेचुरली आने वाला कल हम सबके लिए अच्छा होगा। तो मैं लास्ट में कहूंगी कि मेरे ये डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर और all students, all listeners of this seminar, this webinar, I will be very much thankful to your great presence and in this webinar and listening our speaker. So I am very much thankful, heartily thankful to our speaker, जो इन्होंने हमें बहुत कम समय में अपने बातों को, इतने अच्छे बातों को, अच्छी जानकारियां हमें दी। हमारे स्टूडेंट्स नेचुरली हमारे स्ट्रेसफुल रहेंगे, जो उनको स्ट्रेस से रिलीज करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं, जानकारियां हैं। तो इसी के साथ हमारे जो टीम वर्क, जैसे मैडम ने कहा, हमारे एक टीम वर्क है, और टीम वर्क में हमारे
डायरेक्टर सर से लेकर प्रिंसिपल सर, रियाज सर और हमारे जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट ऑल्सो, हमने हमारे सिबान सर का मैं बहुत बहुत थैंकफुल कहूंगी कि इन्होंने भी और संध्या मैडम ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया कि हमारे साथ में यहाँ पर इतने अच्छे से हमारे वेबिनार को अरेंज किया। तो मैं इन सबका मैं बहुत थैंक्स कहूंगी। और मैं हमारे सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो वेबिनार को जो लिसनर है बहुत धैर्यता पूर्वक पेशेंसली उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे स्पीकर्स को सुना और हमें अपने क्वेश्चन से उन्होंने इंटरेक्शन भी किया। तो इसी के साथ मैं सभी मीडिया और सबको मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। हेमंत सर, मैं दोबारा आपको मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ सर। आपने मुझे एक ही ये से आपका बहुत बड़प्पन है कि एक बात मैंने आपको इनवाइट किया तो आपने उन्हें मान लिया। और सुनैना मैडम शायद यदि सुन रही होंगी, सुनैना मैडम नहीं है, लेफ्ट कर गई। हाँ नहीं है तो सुनैना मैडम को अच्छा ठीक है। तो सुनैना मैडम को थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सुचेता मैम, संध्या मैम एंड ऑल द स्टूडेंट्स। यस सर हाँ कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और थैंक यू भी बोला है। विभा गुप्ता है, इंद्रजीत कौर है, शरबानी है, तस्मिया है, प्रीति है, शाहर बानो है, फलक आजम है, रिशा है, कृति नंदन है, लिपिका है, फरहानाज है, बहुत सारे स्टूडेंट, संदीप मंडल है। ये चाहते हैं कि इनका नाम आपको थैंक यू के लिए बोला जाए। निशा सोरेन है, शिफा मारिया है, दीपिका है, सहदेव है एंड अदा अली है, तलहा खानम है। ये लोग सब लोग हम लोगों के साथ ज्वाइन कर रहा है आपको थैंक यू बोलने के लिए मैडम के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत सभी को अब आई होप सबको अच्छा लगा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सर हेमंत सर के बारे में मैं और बोलना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को जानकारी देना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अभी हम एक लॉकडाउन पीरियड में और घर में हैं, पर हेमंत सर का एक्टिवनेस को जानना पड़ेगा कि वो घर पे भी बैठ के, वो ऐसा नहीं कि घर में ही बैठे हैं, लॉकडाउन पीरियड है, वो अपने एक्टिवनेस को वो बरकरार रखे हैं। जैसे उन्होंने कहा, एक मैंने उनका वीडियो देखा था बुर्ज खलीफा का, वो उन्होंने अपने बिल्डिंग को ही वो बुर्ज खलीफा माने और उनको 54 टाइम्स उन्होंने चढ़ के उस बुर्ज खलीफा का जो कवर किया है, उस हाइट को उन्होंने कवर किया है। तो वो घर पे ही इस एक्सरसाइज को इन्होंने किया। तो मैं जानती हूँ कि इनका इतना ये है कि वो अपनी एक्टिवनेस को वो अभी भी बरकरार रखते हैं ये लॉकडाउन पीरियड। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये जो पीरियड है ये किसी के लिए भी कोई कम बात है। इसमें हम लोग अपने आप को एडजस्ट करें और अपना इम्यूनिटी पावर और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। So see you again, sir. Thank you. Thanks, Thank you. Thank you. Bye. Bye. Okay.